Hello, good morning. Welcome in revision of polynomial. The next part we are going to discuss from question number 23, select 20, maybe 32 or maybe whatever I could complete today, right? So we are about to finish this topic, expecting you also to, focus here, understand everything properly, as well as solve it. Okay, I know it's Sunday for me as well, but I'm not taking this as a holiday. I'm considering this as a preparation day. So it's a good time for you to complete your any of the topic, any of your syllabus for your PT1. Being in 10th standard, I expect you to use all the Sundays properly for your preparation, because regular time mein you don't get really chance to prepare yourself. Okay, so whatever self study you have to do, you have to do it on Sunday. If you ask to any top graded students of your previous year, of your senior, he or she will surely tell you that use Sunday properly, then only you can score better. Okay, so do not unnecessarily enjoy the Sunday. Don't consider Sunday as an enjoyment. Of course you can enjoy later on after preparation. Fine. Anyway, let's continue our today's revision. So in this revision, we'll be discussing about the next question, the very important concept we are going to discuss in this particular part of the topic. So majoritarily what questions I'll be asking, what we'll be discussing in this is nothing but making polynomial using this formula x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So using this formula, we are going to prepare polynomials, and those questions we are going to discuss in this particular session. So let's understand one by one. First one देखते हैं 21st alpha and beta are the zeros. I think we have done this question or no? I don't know. Anyway, alpha and beta are the zeros of the given polynomial f of x such that alpha minus beta is equal to 9. Find k. This is just we can consider as a difficult question, one of the difficult question. There is nothing related to this, but ये question alpha minus beta is given is equal to 9, and using this alpha minus beta I am supposed to find k, and k is present in somewhere at a position of c. So we need to find out something, this alpha minus beta, which is related to alpha plus beta and alpha into beta. Okay, and then I can get the k value. Okay, so how can I get that? It's very simple, very simple. Square this. If I square this, I get alpha square minus 2 alpha beta plus beta square is equals to 81. And I think I'm very clear that this alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta, and this minus 2 alpha beta as it is equals to 81. So alpha plus beta the whole square is minus 1, I think plus 1, sorry. So plus 1 the whole square minus 4 into alpha beta is minus k, and all that is equals to 81. So we have here 4k plus 4k, sorry, and 1 shifting that side is equals to 80, and k is equals to 80 upon 4 is 20, and that's the final answer there. Okay, so squaring that what you need to remember in this case. Okay, थोड़ा सा difficult question था, isn't it? 21st. अभी after this we have this kind of difficulties or difficult questions in the sessions. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. Next one. If zeros of the polynomial these, that is x square plus px plus q are double the value of the zeros of this one. So the two ways we have, 2x square माइनस 5x माइनस 3 के जीरोस फाइंड करो, एंड उसके डबल करके पॉलिनोमियल फाइंड करो. तो चलो देखिए इसके जीरोस फाइंड करते हैं. 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 टू गिव यू माइनस 5, तो 6 1 ज़ा ऑफकोर्स माइनस 6 है ना, माइनस 6. तो ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x और ओनली x माइनस 3. वी कैन टेक थिंग्स कॉमन लाइक 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3. So we have 2x plus 1 and x minus 3 are the factors, therefore 1 minus 1 by 2 and 3 are the zeros of that. इसके डबल करेंगे हम लोग, इसका डबल, तो डबल ऑफ हाफ इज 1 माइनस 1 यू कैन से इंटू 2 करना है बस, एंड 6 हो जाएगा. तो दीज आर द जीरोज एंड आई हैव टू क्रिएट द पॉलिनोमियल ऑफ दीज जीरोज. तो इस जीरोज का पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इंटू 1 माइनस 6.
ठीक है, तो ये हो जाएगा -6। ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एंड इट इज़ टू बी कंपेयर्ड विथ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो p की वैल्यू होगी -5 एंड q की वैल्यू होगी 6। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज। ईजी था, है ना? जीरोज फाइंड करके ये क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इफ नेक्स्ट वन, इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ओके। तो अल्फा प्लस, ये सिंपल है, कुछ नहीं है, हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी है, माइनस ऑफ के -6, तो माइनस ऑफ दैट मतलब प्लस हो जाएगा, तो k -6 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हाफ ऑफ सी अपॉन ए। सी अपॉन ए इज डायरेक्टली 2 इंटू ब्रैकेट 2k-1, जो भी है वो सब कुछ सी है, ठीक है ना? तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, 2k-12 इज इक्वल्स टू 4k-4, राइट? तो ये इधर शिफ्ट, ये उधर शिफ्ट, ये 8 हो जाएगा, -8 -2k इज इक्वल्स टू 8, तो k इज इक्वल्स टू -4। ओ यहाँ पे तो 5 आ रहा है, कुछ गड़बड़? अच्छा हाँ सॉरी, गड़बड़ मतलब ये यहाँ पे 1 चाहिए था, जो मैंने 2 लिखा था। देखो ऐसे होता है, देखो, ठीक है कोई बात नहीं। -2 तो ठीक है, ये 10 हो जाएगा, राइट? 10 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -5 हो गया, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम था। ओके, एनीवे क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 24 इज वेरीफाई वेदर दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई कैसे करना है? p ऑफ x दिया है तो p ऑफ 2 फाइंड करो, 0 आना चाहिए, p ऑफ 3 फाइंड करो, 0 आना चाहिए, एंड p ऑफ 1/2 फाइंड करो, 0 आना चाहिए। वेरिफिकेशन हो गया, दैट्स इट। वेरिफिकेशन इज नॉट अ बिग डील, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन 24 हो गया, 25 फटाफट। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दीज आर इक्वल टू 10 ईच, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड c, ठीक है? 10 ईच मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 10 एज वेल एज अल्फा इंटू बीटा इज 10। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ -5 मतलब +5 अपॉन a इज इक्वल टू 10। यू गेट a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है? a मिल गया। अभी अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a इज इक्वल टू 10। a क्या है? 1/2 है, तो 1/2 उधर शिफ्ट हो गया, 5, c इज इक्वल टू 5, 1/2 एंड 5, काम खत्म। वेरी सिंपल, इजंट इट? सो वेरी इजी। कुछ नहीं, आपको बस थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। वन ऑफ द जीरो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, मतलब अल्फा को a पकड़ा तो बीटा हो जाएगा 7a। ओके, ये कंसिडर करो, समझ लो इसको। तो ये हो गया, एंड देन वी नीड ओके फाइंड वैल्यू ऑफ k तो कहीं ना कहीं है वहाँ पे, ये यहाँ पे +1 है, +1 आप भूल जाओगे वहाँ पे, 2k + 1 इन द पॉलिनोमियल। चलो ठीक है, एनीवे विल कंटिन्यू इट। अल्फा प्लस बीटा हमें फॉर्मूला में भी यूज़ करना पड़ेगा, मे बी अल्फा इंटू बीटा, दोनों में से एक या फिर दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, जैसे भी आप लोग यूज़ करो। -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा मतलब a + 7 8a इज इक्वल्स टू -b इज 8 अपॉन 3 b upon a, and alpha into beta is 7a square, c upon a 2k + 1 upon 3, ठीक है? ये दो इक्वेशन मिल गए। k कहाँ पे है? जो मुझे फाइंड करना है वो यहाँ पे है, लेकिन इसमें a भी तो है, मतलब बेसिकली अगर मैं a फाइंड कर सका तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो a को फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1/3, 1/3 वहाँ पुट किया तो 7/9 इज इक्वल टू 2k + 1/3, राइट? थोड़ा सा फास्ट करो, 3 3 है, चलो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 को सिर्फ उधर शिफ्ट करो, 3 3 हो जाएगा, 3 × 6, ओके, तो पता नहीं, ठीक है? 21 इज इक्वल टू 9 2 18 + 9, जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 18k सॉरी, 9 को इधर शिफ्ट कर दिया तो आई गेट 21 - 9, 21 - 9 12 आता है, आई थिंक 12 इज इक्वल टू 18k, तो k विल बी इक्वल टू 12/18, 6 2 6 3 2/3, क्या क्या आपका आंसर? 2/3, राइट? वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज़ 0 अल्फा एंड बीटा, ओके, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। यहाँ इसके दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेथड जो हमने सीखा था, देखो, राइट, अंडरस्टैंड, I call alpha and beta are zeros of this polynomial,
तो 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होगा, -3/2, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए मतलब 3/2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, न्यू पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरोज जो होंगे वो होंगे कितने, 3α 3β। सो 3α प्लस 3β इज इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 3 इंटू 3/2 विच इज़ 9/2, एंड 3α इंटू 3β इज इक्वल्स टू 9α बीटा विच इज़ 9 इंटू 1/2 विच इज़ 9/2। ये हो गया, समझ में आ गया। तो दिस इज द सम ऑफ जीरोज एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ जीरो एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फॉर्चुनेटली बोथ आर सेम। तो आई गेट अ न्यू पॉलिनोमियल p ऑफ x, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x² माइनस 3α प्लस 3β x प्लस 3α इंटू 3β विच कैन बी इक्वल टू x² माइनस 3α प्लस 3β इज 9/2x, 9/2x प्लस 9/2, राइट। ये हमने किया हुआ था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको अपॉन 1 है तो 2/2 करते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9/2 विच कैन बी टेकन सेपरेट, 2x² माइनस 9x प्लस 9, दैट्स इट। वही आंसर है, ये भी आंसर करेक्ट है, इवन दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमने फॉर्मेट में कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। तो इफ़ यू वांट टू कीप दिस आंसर यू कैन कीप इट एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। बट ये समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, जो भी जीरोस पूछे उनका सम एंड उनका प्रोडक्ट फाइंड करना बाय यूजिंग द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेंगे अभी। चलो कम ऑन, लेकिन खुद से सॉल्व करने के बाद ही आएगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x² 6y² माइनस 7y प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा 7/6, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा 1/3, मतलब 2/6 1/3 सॉरी। ठीक है ना, अभी मुझे क्या चाहिए, जीरोज आर 1/α, तो 1/α प्लस 1/β इज इक्वल सम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 7/6 अपॉन 1/3, तो 7/2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, यस, 1/α बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इट विल बी इक्वल टू 1/1/3 विच इज़ 3। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 1/α प्लस 1/β x प्लस 1/α बीटा, सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इट विल बी x² माइनस दिस विल बी 7/2x प्लस 3 जो भी है। अभी इसको अपॉन 1/1 करोगे तो 1/2 इंटू 2x² माइनस 7x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट, होप इट इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो यू विल रिमेंबर इट एज वेल, है ना। चलो, शो दैट दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दिस। शो दैट करना है मतलब इसको फैक्टराइज करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है मतलब आपको पता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, माइनस बी अपॉन है कि नहीं ये देखना है, बस दैट्स इट। इसमें भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इफ़ यू वांट टू सी दैट। तो क्वेश्चन नंबर 30 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके पहले जीरोस फाइंड करते हैं, x² माइनस 2√2x, ये तो 3 टर्म का नहीं है, मतलब 3 टर्म हो तो ही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, नहीं तो कॉमन निकालो या फिर आइडेंटिटी यूज़ करो, ऐसे होता है, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 2√2, तो वी हैव हियर 0 एंड 2√2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2√2, एडिशन ऑफ दिस टू, इज इट इक्वल टू बी अपॉन ए, ये है b और ये है 1a, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, यस इट इज़ माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 0, इज इट इक्वल टू सी अपॉन ए, यस प्लस 0 होता है, c मतलब 0, तो इट इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट्स इट, वेरीफाई हो गया रिलेशन, इट्स नॉट अ बिग डील, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 31 मतलब हम ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश दिस
पार्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर अल्फा प्लस बीटा इज गिवन। देखो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 24 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन है तो हम लोग अल्फा एंड बीटा फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर देंगे दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आई गेट 2 अल्फा इज इक्वल टू 24 प्लस 8 इज 32, ए अल्फा इज इक्वल टू 16, तो सॉरी 16, तो दिस इज व्हाट माई अल्फा इज एंड व्हाट इज बीटा। बीटा आई कैन पुट दिस 16 वैल्यू इनटू एनी ऑफ द इक्वेशन अबाउ, तो बीटा मिल जाएगा मुझे 24 माइनस 16 इज 8, तो बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। अल्फा एंड बीटा मिल गया तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैसे होता है, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यूजफुल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 16 प्लस 8 कितना होता है 24x प्लस दिस टू दिस 128। मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे देख के बताया, पर ठीक है आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। 16 इंटू 8 यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, करेक्ट, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, अल्फा बीटा गैमा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपन अल्फा 1 अपन सॉरी हाँ अल्फा रेज़ टू माइनस 1 मतलब 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा 1 अपन गैमा। ओके ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इसके थोड़े से फॉर्मूले हम करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, सब रिवीजन होने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक सेशन हम लोग लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी अल्फा बीटा के फॉर्मूले होते हैं। ओके वी हैवंट येट डिस्कस दैट, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग HOTS की तरफ जा रहे हैं। HOTS इन केस इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट वांट जस्ट स्किप दिस, नो प्रॉब्लम। ओके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो मुझे लगता है कर दो ना भाई, और ऐसा नहीं कि सारे करो, थोड़े तो करो। अभी जैसे देखो 34th क्वेश्चन, अभी 34th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो, अगर इसको आप लोग फैक्टराइज कर सको तो अल्फा एंड बीटा मिल जाएगा, जस्ट सब्ट्रैक्ट करो यू गेट योर आंसर। तो ये थोड़ा ही HOTS है, इट इज़ नॉट HOTS। हाँ लेकिन HOTS कब कंसिडर होता है, ये तो सिंपल सा वे था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप लोग फैक्टराइज ही नहीं कर पाओ इसको तो अल्फा एंड बीटा तो नहीं फाइंड कर सकोगे। तो इसका एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करो, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अभी अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी दिस 2 अल्फा बीटा हियर एंड अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगा दिया, तो आई गेट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है, इट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 6 4 कितना होता है 24, तो आंसर 1। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज़ 1, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा 1 ही होगा या फिर प्लस और माइनस 1 होगा, ठीक है, दैट्स इट। आप पीछे आंसर क्या, यहाँ पे आंसर क्या दिया, कहाँ गया क्वेश्चन, आंसर दिए नहीं है, ठीक है। तो एनीवे आंसर इज़ 1, ठीक है, इज दिस क्लियर, यू गॉट द पॉइंट। तो ये भी वे है एंड ये भी एक वे है कि डायरेक्टली आप लोग इसका अल्फा एंड बीटा स्पेशली सेपरेटली फाइंड करके यू कैन सब्ट्रैक्ट इट एंड गिव द आंसर, फाइन। आगे बढ़ते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q। डिविजन इज बिन कैंसल्ड फ्रॉम योर syllabus itself, so I don't think you need this question to solve, but still if you want to solve it you can try this, ठीक है, we have done this kind of question but division is not there in your syllabus now। anyway आगे बढ़ते हैं, if alpha and beta are zeros of the polynomial P of x then find the polynomial whose zeros are this one। तो अल्फा वही अभी जो हमने किया तो वही क्वेश्चन है, तो इसको ईजीली भी कर सकते हैं इफ़ आई एबल टू फैक्टराइज इट। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अगर मैंने फैक्टराइज किया तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा क्या देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 2 आ जाए आंसर, इम्पॉसिबल है, देख लो है क्या पॉसिबल है, 3 1 ज़ा 3 नहीं है पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि अल्फा एंड बीटा फाइंड करो, नहीं तो ये क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं, फिर अल्फा यहाँ पे पुट कर दो, बीटा अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर दो एंड यू गेट योर आंसर। तो करना क्या है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो ये है मेरा 1 0, अभी ये हो गया आपका एक पार्ट ऑफ द टॉपिक, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
अभी 1 - 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा प्लस 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा वुड बी द सम ऑफ द ज़ीरोज़। ये सम ऑफ द ज़ीरो है, इसको फाइंड करते हैं एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो फाइंड करते हैं। ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - अल्फ़ा इंटू 1 + बीटा प्लस 1 - बीटा इंटू 1 + अल्फ़ा डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो 1 + अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्टली प्रोडक्ट कर दिया। नीचे ऊपर देखते हैं, अभी ऊपर क्या है, हम प्रोडक्ट करेंगे 1 + बीटा -अल्फ़ा बीटा प्लस 1 + अल्फ़ा -बीटा -अल्फ़ा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो जाएगा। दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखो बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है। 1 + 1 2, 2 - 2 अल्फ़ा बीटा, 2 - 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 + अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन वन। तो 2 - 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 प्लस सॉरी -2/3 -2/3। अब इसको सॉल्व करके यू कैन गेट द सम। ठीक है, हो सकता है सॉल्व, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इसलिए तो HOTS है, थोड़ा सा क्रिटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए तो HOTS बोलते हैं इसको। तो सॉल्व करके यू कैन गेट दैट आंसर। नहीं तो फिर मैं, इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी, आई विल सेंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस वन एंड देन प्रोडक्ट करो। वैसे ही सेम वे से प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी जस्ट 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट। अरे अरे, फिर भी साइज़ उतना ही है उसका। एनीवे, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 + अल्फ़ा इंटू 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा। तो ऊपर प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्टली। प्रोडक्ट इज ईजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं ना। 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा एंड नीचे आएगा 1 + अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा। ओके, ऊपर आएगा 1 + अल्फ़ा बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 + अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे क्यों किया, सो दैट आई गेट अल्फ़ा प्लस बीटा देयर। आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ एंड गेट द एडिशन कैलकुलेशन डन। तो एक बार सम आ गया, एक बार प्रोडक्ट आ गया, आई कैन ईजिली सॉल्व द और गेट द पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते सेम है। देखो 37 क्वेश्चन भी, एक मिनट, सब हो गया क्या? ओके, 37 क्वेश्चन भी सेम है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है 0, इन दोनों का एडिशन, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, देखो अंडरस्टैंड इट। ये बस लेंदी होता है और कुछ नहीं। 1 + बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 + अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू, फाइंड करना है बस, दैट्स इट। तो ये जगह 2 + अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा 2 + अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, यू गेट द सम ऑफ द जीरोस। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, मतलब 1 + बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 + अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा, सॉरी। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 1 + अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, क्योंकि दिस इंटू दिस इज गोइंग टू बी 1, तो इट विल बी 2 प्लस, वही आएगा आंसर, मतलब प्रोडक्ट का और सम का आंसर वही आएगा, दैट्स इट। ये देखो 16 एंड 16 है ना, वही आंसर आएगा। तो ठीक है, दैट्स इट। अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही है। देखो स्क्वायर करना है, अभी तो याद आ गया होगा आपको, है ना। स्क्वायर करना है बोथ द साइड एंड यू गेट योर आंसर डन। चलो करो, सॉल्व करो। अल्फा बीटा एंड 1 अपॉन बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। चलो ठीक है, जो भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा। अल्फा तो कहाँ है, अच्छा इक्वेशन में, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ऐसा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, इज़ सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा है
एंड बीटा 1 बीटा है, तो सी अपॉन ए, सी क्या है 6 अल्फ़ा सॉरी अपॉन ए क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। समझ में आ रहा है? अभी ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा को इधर शिफ्ट कर दिया, तो व्हाट डू आई गेट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा कॉमन निकाला, अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आएगा और अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, एक स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगा। ओके, सो देयर वोंट बी एनी सच पॉसिबिलिटी टू मेक इट 0 क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 अगर मैंने कहाँ पुट कर दिया तो बीटा मिलेगा मुझे ओके अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, तो बीटा तो वैसे भी नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 आप इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा भी करके कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू। ठीक है, एनीवे इक्वेशन में पुट कर दो, 25 प्लस 5 30x² प्लस 61x प्लस 6 5 ज़ा 30, इस पॉलिनॉमियल को ये करो क्या बोलते हैं फैक्टराइज करो, तो 30 इंटू 30 टू गेट इट एज 61, ऐसे कोई है क्या जो 30 इंटू 30 फैक्टराइज करो होगा 100% होगा। तो फाइंड आउट करो एंड गेट द आंसर, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप लोग, इट्स नॉट अ बिग डील, तो सर्च करो। आई वोंट बी डूइंग इट, यू कैन डू इट। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे रुक देता हूँ, कंप्लीट करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मैं सर्च करते बैठूंगा और फिर टाइम निकल जाएगा। एनीवे नेक्स्ट वन देखते हैं, ये देखो ये सिंपल सी बात है। क्या क्या फाइंड करना है, देखो दिया है पॉलिनॉमियल दिया है ना आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करो तो पहला वाला निकल जाएगा। सेकेंड वाले में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा करो तो सेकेंड वाला निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड वन अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, एक्सपांड करो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अभी भी बहुत बार किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये वैल्यू पुट कर दो, ये भी निकल जाएगा राइट। एंड लास्ट वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नहीं ये फोर्थ वन, ये इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकल गया आंसर। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिफ्थ वन चेक करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये अल्फा प्लस बीटा में आ गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लोग क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा, एंड देन सब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में आ गया, यू कैन सॉल्व दिस एज वेल, दैट्स इट। ठीक है, 41 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है। ओके, अगर आपके पास है तो देख लो एक बार, ये नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, इफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरो, स्क्वायर डिफरेंस इसका मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, एंड आपको पी फाइंड करना है, स्क्वायर डिफरेंस है ना, तो दिस कैन बी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 144, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है, पी इंटू ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 144। ठीक है ना,